Morning, students, and welcome in our science online class. We are learning lesson number 3, food, health, and hygiene. In previous video, we have seen about quick recall and non-communicable diseases. Today, we are going to see quick recall with bingo and exercise. So let's start. Recall with bingo. Number 1, health is defined as a state of complete physical and mental well-being. तो हेल्थ मतलब क्या? हेल्थ मतलब जो फिजिकली यानी जो बॉडी और मेंटली यानी हमारा जो ब्रेन है, अगर हम दोनों से फिट रहे उसको ही हम बोलते हैं हेल्थ. नंबर 2, टू रिमेन हेल्दी वी मस्ट ईट अ बैलेंस डाइट. So all this lesson we have just come to know about that to remain healthy we have to take a proper balanced diet. Number 3, a balanced diet includes carbohydrates, fats, proteins, vitamins, minerals, water, and roughage in the right quantity. So, what do you mean by a balanced diet? Balanced diet means in that diet we have to include carbohydrates, fats, proteins, vitamins, minerals, water, and roughage in a right quantity. Okay, so we have to eat those foods which contain all of these things. Okay, so number 4, regular exercise is an important part of us staying healthy. So, not only just having a proper balanced diet, but along with that, we have to do regularly exercise to be healthy. Number 5, hygiene is a science of cleanliness whose aim is to preserve health and prevent the spread of diseases. So hygiene means what? Hygiene means a science of cleanliness. Means you have to just keep yourself clean as well as your surrounding also clean so that diseases would not spread from person to person. Number 6, our body needs proper rest to store its vigorous and energy. So doing all these activities, doing multiple activities, tasks, and lots of work, along with that our body also need rest so that it can store its energy, repair itself, and grow for doing other for doing your work with full of energy. Number 7, a disease is the condition of abnormal functioning of a part or the body or the whole body. So what do you mean by disease? Disease means abnormal function of your any body part or whole body इज कॉल्ड एज डिसीज़. यानी आपके जो बॉडी का कोई भी बॉडी पार्ट वो अगर ठीक से काम नहीं कर रहा है या फिर बॉडी पार्ट बोलो या फिर आपकी पूरी बॉडी बोलो उसको ही आप डिसीज़ बोलोगे. ठीक है. नंबर 8, diseases are categorized into two types, communicable and non-communicable diseases. So depending on the diseases it is also divided into two types, that is communicable and non-communicable. Number 9, communicable diseases can be transmitted from one person to another. So what is communicable disease? Communicable disease means which can be transferred from one person to another is called as communicable disease. Number 10, non-communicable diseases cannot be transmitted from one person to another. Whereas non-communicable diseases cannot spread from one person to another, it is by birth or it may be caused by deficiency of vitamins, proteins, and or minerals. Okay, so this is recall with bingo. So it's time for your exercise. So let's do exercise time. Beat A. Answer the following questions. Define the term health. How can a person remain healthy? So in this question you have to define the term health. Means what is health? Health means the state of complete physical, mental well-being and all. So this you have to write. And how a person can be healthy. So that person must have to include a balanced diet, a regular exercise. These all things. So you have to write in this question. Number 2, why do we need nutrients in our diet? So why it is necessary to eat a perfect diet, or why we have to eat the proteins, carbohydrates, vitamins and minerals? So you have to write all these things in this, why we have to eat. Okay, so number 3, mention the role of each of the nutrients. Also write two sources of each. So in this question you have to say the role of nutrients, like what is the work of proteins or what is the work of fats, like the work of function or the function of the fat is to provide energy to the body. And what are the sources of fat? So the sources of fats are ghee, butter, milk, cheese. These are some sources of
Fats, so you have to write any two, like you can write cheese and butter also. Next, number 4, what are the benefits of a regular exercise? So what are the benefits means what happens when you do regular exercise. So by doing regular exercise your body stays healthy, you have a good body posture, and all these things are the benefits doing exercise regularly. So you have to write this. तो ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको ये लिखना है कि रोज़ एक्सरसाइज करने के क्या फ़ायदे होते हैं. नंबर 5, लिस्ट वेज इन विच वी कैन मेंटेन हाइजीन. सो यू हैव टू लिस्ट और यू हैव टू राइट सम वेज इन विच वी कैन मेंटेन आवर हाइजीन. जो स्वच्छता है वो हम किस तरह से कर सकते हैं. ऐसे कोई कुछ भी जो चीज़ें जैसे आपको पता है 3-4 आप वहाँ पे लिख सकते हो. ठीक है, जैसे कि अपने नेल्स प्रॉपरली रेगुलर टू रेगुलर अपने नेल्स कट करना, खाने से पहले और खाने के बाद प्रॉपरली हैंड वॉश करना, ये जो सारी चीज़ें होती है हाइजीन की, ये आप इसमें लिख सकते हो. नंबर 6, वाई डू वी नीड रेस्ट. हमें आराम क्यों चाहिए होता है. ठीक है, हमें आराम क्यों करना चाहिए होता है. सो हमें आराम हमारे बॉडी के लिए करना चाहिए होता है. सो दैट्स वाई इट कैन रिपेयर इट सेल्स एंड इट गेट्स टाइम टू ग्रो. नंबर 7, व्हाट इज़ अ डिसीज़. डिसीज़ मतलब क्या, आपको ये लिखना है. व्हाट आर द डिफरेंट रीजन्स फॉर ऑकरेंस ऑफ डिसीजेस. तो डिसीज़ होने के जो अलग अलग कारण है वो आपको वहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको लिखने हैं. 8, डिफाइन कम्युनिकेबल डिसीजेस एंड नेम सम ऑफ देम. तो कम्युनिकेबल डिसीज़ मतलब क्या, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जो ट्रांसमिट होता है उसको हम कम्युनिकेबल बोलते हैं. तो ये ऐसे एक डेफिनेशन लिखनी है और फिर उसके जो कम्युनिकेबल डिसीजेस है वो कौन से, जैसे कि मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, ये कम्युनिकेबल डिसीजेस है. तो आप लिख सकते हो वहाँ पे. नंबर 9, हाउ डू कम्युनिकेबल डिसीजेस स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. तो ये जो कम्युनिकेबल डिसीज हम बोल रहे हैं कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में हो सकता है, तो ये कैसे होता. तो जैसे वाटर है, एयर है, इन सब के मीडियम से क्या हो सकता है कि वो जो डिसीज़ है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड हो सकता है. तो आपको यही इंग्लिश में लिखना है वहाँ पे. नंबर 10, व्हाट आर नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस. और तो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ मतलब क्या होता है वो आपको लिखना है. जैसे कि वो पर्सन टू पर्सन स्प्रेड नहीं होती है, तो उसका रीज़न तो फिर कैसे होती है. तो वो बाय बर्थ होती है या फिर न्यूट्रिशंस की डिफिशियंसी हो उसकी वजह से होती है. तो ये आपको इसके अंदर लिखना है. ठीक है. Bit B, fill in the blanks. Number 1, food contains dash which are the building materials of our body and provide us dash for growth and other activities. तो फूड जो होता है उसमें क्या होता है, तो उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यानी फैट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, इनको अगर एक नाम दे तो हम उसको न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं. तो उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं और इन न्यूट्रिएंट्स का काम क्या होता है, हमको एनर्जी देना. तो जो सेकंड वाला है उसमें क्या आएगा, एनर्जी. ठीक है. नंबर 2, डैश आर इसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी. तो ये जो न्यूट्रिएंट्स है इसमें से कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए, तो वो है प्रोटीन्स. नंबर 3, हाइजीन इज़ एन डैश कंपोनेंट ऑफ हेल्दी लिविंग. तो हाइजीन जो है ये एक अच्छे हेल्दी लाइफ जीने का जो ये कंपोनेंट है, तो वो कैसा है, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसेंशियल है. ठीक है. नंबर 4, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस आर द रिजल्ट ऑफ अनहेल्दी डैश और दे मे बी प्रेजेंट एट. तो ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस होने का जो रीज़न है वो क्या है, एक तो अनहेल्दी लाइफस्टाइल. अनहेल्दी लाइफस्टाइल यानी क्या, जैसे कि जंक फूड खाना, एक्सरसाइज नहीं करना, प्रॉपर अमाउंट में डाइट नहीं लेना, तो इसको बोलेंगे हम अनहेल्दी लाइफ स्टाइल. इसके वजह से भी बीमारियां हो सकती है या फिर किसी किसी को बाय बर्थ भी हो जाती है. नंबर 5, डैश इज कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ आयरन. आयरन की कमी होने की वजह से कौन सी बीमारी होती है, तो वो है एनीमिया. ठीक है. सो लेट्स सी द नेक्स्ट. सो बीट सी, tick the correct answer. So what you have to do, you have to read the question. There are 3 options. So to correct option you have to put a tick. Number 1, which of these is are a source of fats? A, eggs. B, fresh fruits. C, cream. तो जो फैट है उसका सोर्स क्या है, तो एग्स तो वो प्रोटीन के सोर्स होते हैं, फ्रेश फ्रूट मिनरल्स के होते हैं. तो रहा को क्रीम, क्रीम किसका सोर्स है, वो है फैट का. नंबर 2, विच ऑफ दिस इज अ कम्युनिकेबल डिसीज? A, cholera. B, cancer. C, scurvy.
सो जो कम्युनिकेबल डिसीज़ का जो एग्जाम्पल है वो कौन है, वो है कोलेरा। बाकी के दो तो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस हैं। नंबर 3, which of these nutrients help our body to fight diseases? A. Fats. B. Proteins. C. Vitamins. So it is C. Vitamins. Vitamins helps us to fight against the diseases. Number 4, which of these is caused due to deficiency of iodine in the food? तो आयोडीन अगर हमारे बॉडी में कम हो गया तो कौन सी बीमारी हो सकती है हमें, वो है गोइटर। आयरन एनीमिया आयरन की कमी की वजह से होती है, ठीक है। रैकेट्स जो होते हैं वो विटामिन डी की वजह से होते हैं। Number 5, the condition of abnormal function of a part of the body or the whole body is known as diseases. 6, which of these helps in improving the blood circulation of the body? Yes, it is exercise. Exercise करने से हमारी blood circulation अच्छी होती है। D, state whether the following statements are true or false. तो देखेंगे अब कौन से statements true है और कौन से false है। Number 1, plague is a non-communicable disease. प्लेग जो है वो क्या है, कम्युनिकेबल है, नॉन कम्युनिकेबल नहीं है। तो ये सेंटेंस कैसा है, फॉल्स है। नंबर 2, एक्सरसाइज इज इम्पॉर्टेंट फॉर स्टेइंग हेल्दी। येस, इट इज ट्रू। 3, फिश एंड एग्स आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स। सो दिस सेंटेंस इज फॉल्स। वाई? बिकॉज फिश एंड एग्स आर रिच इन प्रोटीन्स, नॉट इन कार्बोहाइड्रेट्स। नंबर 4, vitamins helps in formation of teeth and bone. So this sentence is also false. Why? Because minerals help in the formation of teeth and bones. Number 5, to remain healthy, we must eat a healthy diet. So, this sentence is true. To remain healthy, we have to eat a healthy diet. Bit E, discuss in class, a healthy mind resides in a healthy body. Give reason. ये एक कहावत है कि अगर हमारी बॉडी हेल्दी होगी तो हमारा जो माइंड होगा वो भी हेल्दी होगा। तो ऐसे क्यों है? तो ऑब्वियसली अगर हम हेल्दी रहेंगे, हमारा कुछ दुखेगा नहीं, तो हम पॉजिटिव रहेंगे लाइफ को लेके और हम एक्टिव भी रहेंगे। इसकी वजह से हमारा जो ब्रेन होगा वो भी अच्छे से काम करेगा, ठीक है। नंबर 2, हाउ डू यू थिंक वी इन्वाइट डिसीज ऑन कीपिंग आवर सराउंडिंग्स डर्टी? तो आपको क्या लगता है, फिर आप क्या सोचते हो कि हम जो बीमारियां होते हैं उनको इनविटेशन देते हैं जब हम हमारी जो सराउंडिंग होती है उनको डर्टी रखते हैं? तो ये ऑब्वियसली अगर हमारी सराउंडिंग्स डर्टी रहेगी, गंदी रहेगी, तो हम तो जो बीमारियां होते हैं उनको तो न्योता ही दे रहे हैं कि आओ हमारे घर पे। जो अगर जो अपनी सराउंडिंग्स होती है वो डर्टी होगी तो उससे क्या होगा, ऑब्वियसली वहाँ पे जर्म्स आएंगे, जर्म्स पे वहाँ पे ग्रो होंगे और फिर वो स्प्रेड भी होंगे, जिसके वजह से हम बीमार भी हो सकते हैं। नंबर 3, हाउ डू यू थिंक स्लीपिंग एंड वेकिंग अप अर्ली एड्स क्वालिटी टू आवर लाइफ? तो आपको क्या लगता है जल्दी सोना और जल्दी उठना ये आपकी लाइफ में क्या क्वालिटी ऐड करती है, फिर क्या हो सकता है इससे? तो अगर आप जल्दी सोओगे तो आपके बॉडी को रेस्ट करने के लिए प्रॉपर टाइम भी मिलेगा और जल्दी उठोगे तो क्या होगा, आपको बहुत सारा टाइम मिलेगा, आप बहुत कुछ काम कर सकते हो पूरे दिन भर में। तो यस, अगर आप जल्दी सोते हो जल्दी उठते हो तो बहुत कुछ अच्छा आप कर सकते हो। डू एंड लर्न leisure time, complete the following web charts. So as you can see, this is a web chart. Here are two different web charts. First one is to stay healthy. तो हेल्दी रहने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें करनी वो आपको लिखना है। जैसे 2 ऑलरेडी उन्होंने दिया हुआ है, जैसे कि मेंटेनिंग हाइजीन। दूसरा है प्रोटेक्शन फ्रॉम डिसीजेस। सो रिमेनिंग 3 यू हैव टू राइट। सो फर्स्ट इज ईट अ बैलेंस डाइट, नेक्स्ट एक्सरसाइज रेगुलरली एंड टेक प्रॉपर रेस्ट। और जब हम ये पांचों चीज़ें करेंगे तो हम कैसे हो जाएंगे, हम हेल्दी हो जाएंगे, ठीक है। और सेकेंड वाला जो वेब चार्ट है वो है डिसीजेस। तो डिसीजेस कैसे, कितने टाइप्स की है, 2 टाइप्स की है। कौन सी है, एक कम्युनिकेबल है और दूसरी नॉन कम्युनिकेबल है, ठीक है। तो कम्युनिकेबल जो डिसीज़ है उसके कौन से एग्जाम्पल्स है, तो वो है प्लेग, मलेरिया और कोलेरा। आप डेंगू भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी 3 लिखना है तो आप कोई भी 3 लिख सकते हो। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ में ऑलरेडी उन्होंने यहाँ पे कैंसर दिया हुआ है तो बाकी के 2 इसमें लिख सकते हो। यहाँ पे स्कर्वी और रैकेट्स मैंने लिखा है। बिट बी, फाइंड आउट द नेम्स ऑफ
7 healthy food items in the given grid. The names may read forward, backward and cross. तो ये एक ग्रिड है, इसमें जो हेल्दी फूड है वो है, ठीक है। हेल्दी फूड यानी जैसे कि जो इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स हो सकते हैं, ऐसे वर्ड से आपको वो फाइंड करना है। वो कुछ नीचे से ऊपर की तरफ भी जा सकते हैं, यानी क्रॉस, नीचे से ऊपर की तरफ भी जा सकते हैं, क्रॉस भी जा सकते हैं, ठीक है। फॉरवर्ड भी होते हैं या फिर बैकवर्ड की तरफ भी हो सकते हैं। तो आपको ये ग्रिड सॉल्व करनी है, ठीक है। फाइंड करना है उसमें और उसमें आपको सॉल्व करनी है। सो प्रोजेक्ट एंड एक्टिविटीज़। ए, collect information of deficiency diseases and their prevention from various sources like internet, magazines, etc. Now make a project using this information. तो आप इंटरनेट और मैगजीन्स की मदद लेके एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना सकते हो। आप डिफिशियंसी मतलब जो भी जो चीज़ें न्यूट्रिएंट्स है, अगर वो हमारी बॉडी में कोई कुछ कम हो गई होगी तो वो उसके रीज़न से जो भी डिसीज़ हमको होती है, तो आप कोई भी एक डिसीज़ ले सकते हो और वो कैसे हुई है या फिर किसकी कमी से हुई है वो वहाँ पे बता सकते हो प्रॉपरली, और उससे हम खुद को क्योर कैसे कर सकते हैं ये भी आपको उसमें लिखना है। एक छोटा सा आप आपके नोटबुक पे भी अगर ये प्रोजेक्ट करके मुझे सेंड करते हो तो भी चलेगा। बिट बी, organize a class discussion on the following topics: how to keep your home and city clean. Number 2, the importance of regular exercise in our life. सो एक क्लास में डिस्कशन, अभी तो हम क्लास में नहीं है तो आप आपका एक छोटा सा एक वीडियो 1 मिनट का बना सकते हो जिसमें आप इन दोनों भी टॉपिक पे थोड़ा थोड़ा बात करके तो भी चलेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर प्रोजेक्ट एंड एक्टिविटीज़। हियर योर लेसन नंबर 3 एंड्स। यहाँ पे आपका लेसन नंबर 3 जो है ख़त्म होता है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।